Hi, today we will study about nutrition in plants for class 7th part 2. This is a plant Cascata amarvale, which you can see in this image. It does not have chlorophyll, it takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host. Since it deprives the host of valuable nutrients, Cascata is also called the parasite. There are a few plants which can trap insects and digest them. Such plants may be green or of some other color. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf, which you can see in this image. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plant is called insectivorous plant. Saprotrops. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market like this. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season, which you can see in this image. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. These cotton-like threads spread on the piece of bread. These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organism with saprotrophic mode of nutrition is called saprotrophs. Fungi also grow on pickles, leather, cloth, and other articles that are left in hot and humid weather for long time, as the fungi had been spread on this bread. During the rainy season, they spoil on many things. You can ask your parents about the menace of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. इस इमेज में जो आप प्लांट देख सकते हैं जिसे कैस्कटा या अमरबेल कहते हैं, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होती है. ये रेडीमेड फूड लेता है. जिस प्लांट पर भी ये क्लाइम्ड है उससे ये अपना रेडीमेड फूड लेता है और उस प्लांट को हम होस्ट कहते हैं. और जैसे कि ये होस्ट प्लांट से वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स लेता है तो इस कैस्कटा को हम पैरासाइट भी कहते हैं. यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं फिर उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं. ऐसे प्लांट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या किसी और कलर के भी. इसमें एक पिक्चर लाइक या जग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ होता है. अब इसमें एक लिड होती है, वो खुल भी सकती है और बंद भी हो सकती है. मतलब एक टाइप से ये पिक्चर प्लांट में जो ये जग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है ये. फिर इसमें अगर कोई इंसेक्ट्स बैठता है और इसके अंदर कुछ हेयर्स भी होते हैं तो फिर ये लिड जो है बंद हो जाती है. उसके अंदर के जो डाइजेस्टिव जूस है वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसलिए हम ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोर्स प्लांट भी कहते हैं. सेप्रोट्रॉप्स. आपने जैसे कि देखा होगा कि मार्केट में मशरूम्स को सेल किया जाता है और आपने ये भी देखा होगा कि फ्लफी लाइक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर जैसे देखे होंगे आपने, जैसे मशरूम में होते हैं वो रॉटिंग वुड में या सॉइल में उगते हैं रेनी सीजन के टाइम में. फिर हम यहाँ पे कुछ और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म देखेंगे जो ऐसे ग्रो करते हैं और वो कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर सके. जैसे कि आप ये मशरूम देख सकते होंगे कि एक डिकेड मटेरियल में ग्रो कर रहा है और जैसे ब्रेड में भी आपको कुछ कॉटन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे. इन ऑर्गेनिज्म को हम फंजाई कहते हैं. अब इनके भी डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. ये अपना न्यूट्रिशन जो है ब्रेड से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब जो ऑर्गेनिज्म किसी और डेड या डिकिंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. फंजाई सिर्फ ब्रेड में ही नहीं, जैसे पिकल्स में, लेदर में, क्लोथ्स में या किसी और आर्टिकल में जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में छोड़ा गया है उस पर भी ग्रो कर सकते हैं. जैसे रेनी सीजन के टाइम में बहुत सारी चीजें बॉयल हो जाती है, मतलब सड़ जाती हैं. और आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि फंजाई की वजह से आपके घर में जो मैनेज कैसे क्रिएट होता है और कैसे फंजाई जो है बहुत सारी चीजों को स्पॉइल कर देती हैं. और फंगल स्पोर जो होती है वो एयर में प्रेजेंट होती हैं. जहां पर भी कोई वेट या वार्म कंडीशन होती है वो वहां पर लैंड कर जाती है और वहीं पर
जर्मिनेट करती हैं। Symbiosis. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plant provides nutrients to the fungus, and in return, the fungus provides water and certain nutrients. Lichens. In an organism called lichens, a chlorophyll containing partner, which is an alga, and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provide food to the fungus. How nutrients are replenished in the soil? In organism called lichens, a chlorophyll containing partner, which is an alga, and a fungus live together. The fungus provides shelter, which I have also told you in previous part. Usually crop plant absorbs a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into a usable form, but rhizobium cannot make its own food. So it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. In return, the plant provides food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. Most of the pulses, also called dals, are obtained from the leguminous plants. In this chapter you learn that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasite or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. We can say that the insectivorous plants are partial heterotrophs because they can obtain nutrients from both autotrophic photosynthesis and heterotrophic insect consumption sources. सिम्बायोसिस. कुछ ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं. इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं. जैसे बहुत से फंजाई प्लांट की रूट्स में रहते हैं, फिर प्लांट जो है उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उसके रिटर्न में फंगस उन्हें वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे लाइकन्स. इसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जो जिसे हम एल्गा कहते हैं और फंगस एक साथ रहते हैं. फिर इसमें फंगस जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है और वाटर और मिनरल्स एल्गा को प्रोवाइड करता है और इसके रिटर्न में एल्गा इसमें खाना बनाती है और फूड को प्रोवाइड करती है फंगस को. हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे लाइकन्स उनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसे एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं और जिसमें फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है वाटर और मिनरल्स एल्गा को और उसके रिटर्न में एल्गा उसे फूड प्रोवाइड करती है फंगस को. जैसे क्रॉप लॉट ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल जो है डेफिशिएंट हो जाती है, मतलब सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन गैस जो है प्लेंटी इन अमाउंट में प्रेजेंट है एयर में, मतलब 78% ऑफ नाइट्रोजन आर देयर इन एयर. प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन मैनर, मतलब प्लांट इसे इस मैनर में नहीं एब्जॉर्ब कर सकते जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं. फिर उन्हें नाइट्रोजन जो है सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए. एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके. जैसे राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता है तो फिर ये रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग या बीन्स की रूट्स में रहता है और या फिर अदर लेग्यूम्स के भी और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और इसके रिटर्न में प्लांट उसे फूड या शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं. फिर इस रिलेशनशिप को भी हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. ये एसोसिएशन एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है फार्मर्स के लिए क्योंकि इससे उनका नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का भी यूज कम होता है जहां पर लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो होते हैं. जैसे मोस्ट ऑफ पल्सेस दाल्स, जैसे कि पल्सेस जो जिन्हें हम दाल भी कहते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से ऑब्टेन होती हैं. इस चैप्टर में जैसे आपने पढ़ा बहुत से प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ही प्लांट्स जैसे पैरासाइट ये सेप्रोट्रॉपिक होते हैं. ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं और एनिमल जो है दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है, एक है हेटरोट्रॉप्स और एक है ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉप्स जो अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म में डिपेंड रहते हैं. फिर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट है, जैसे हमने पिचर प्लांट पढ़ा था
ये पार्शियल हेटरोट्रॉप्स हैं क्योंकि ये अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो लेते हैं ही, लेकिन साथ ही ये अपना भी खाना थोड़ा खुद बना देते हैं। हेटरोट्रॉप में जैसे ये इंसेक्ट कंजप्शन करते हैं और ऑटोट्रॉप में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। Thank you. Hope you like my explanation. Please like, share and subscribe to our channel.